हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन अवारा फिजिक्स. यू आर विथ एसके सर एंड आई होप सो यू आर एंजॉइंग द लेक्चर सीरीज ऑफ फिजिक्स. बहुत ही आपको समझ में आ रहा होगा और कहीं प्रॉब्लम्स आती है आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. सो वी विल डिजाइन द लेक्चर्स इन अ वेरी appropriate way and extensively very good way. So without wasting a time, so let's start. What are the important topics we are going to be talk today? कौन कौन से ऐसे important topics हैं जो आज हम बात करने वाले हैं. 100% surety there will be no doubt in any topic if you are focusing very carefully in this video. Okay, so if you are just able to understand the idea of the what topic which is covering in this subject of physics, so please share this channel as well as subscribe and like it. So without wasting a time, let's start. So what are the topics we are going to be talk about here? Standard 12th, subject is physics, chapter number 6, and the name of the chapter is electrical circuit. We in this channel, Avara Physics, learn the way you wish. We are going to cover here CBSE and all other state board. सो कौन कौन से टॉपिक के हीरो लोग जो आज हम कवर करने वाले हैं वो एक बार आप देख लीजिएगा. फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर होता क्या है. सेकंड टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. थर्ड टॉपिक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. ऑल्सो वी आर गोइंग टू बी कवर दिस टॉपिक इन दिस वीडियो. नंबर 4 टॉपिक सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर. सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर से आप क्या समझते हैं उसकी बात भी हम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक. सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एंड दैट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर. फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली मीनिंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर. सो दिस वर्ड द वर्ड इज सजेस्टिंग टू यू. यहां पे अगर आप अच्छे से टॉपिक को देखेंगे तो आपको ये टॉपिक ही सजेस्ट कर रहा है कि पोटेंशियोमीटर का मीनिंग क्या होता है. पोटेंशियल मेजरिंग. ओके, सो द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर. अगेन आई एम टेलिंग यू a type of device which is used to measure the potential difference or potential that is called potentiometer. So I am writing the standard definition. अच्छे से समझिएगा. कहीं कोई प्रॉब्लम आती you can ask me any doubt. So definition of potentiometer. It is a device used to measure an unknown EMF, electromotive force, or you can say that potential difference. Potential difference accurately. So what is potentiometer? सर एक डिवाइस है जिसका यूज होता है मेजर करने के लिए. किसको मेजर करने के लिए. अननोन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, अननोन ईएमएफ, ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो एक्यूरेटली वी आर मेजरिंग हियर द पोटेंशियल डिफरेंस as well as unknown EMF. That is called potentiometer. Okay, let's try to understand the diagrammatical situation in which you can able to understand. This is the resistance. In this I current is flowing. And if you want to determine here the potential difference across this circuit, so you have to be connect the voltmeter parallel to that particular circuit. So we connected the voltmeter parallel to this circuit and we can easily measure the potential. Okay, so that's very easy. And suppose here the current is flowing I1. See total circuit में यहाँ पे करंट कितनी आ रही है, I आ रही है. यहाँ से I एंटर करी और इस पॉइंट पे डिवाइड हो गई.
यहाँ I1 गई तो बची हुई करंट कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, तो I में से मैंने क्या माइनस कर दिया, I1. सो रिमेनिंग करंट विल बी व्हाट, fall and just pass through the voltmeter. So we can determine the EMF, unknown EMF or potential difference accurately, by means there will be no error. So that particular device is known as potentiometer. So this is a figure of potentiometer. Now we are talking about the important point of potentiometer. These important points are very important. Important points. So first point I am writing here. See, voltmeter, which does not change the original potential difference, needs to have infinite resistance. And potentiometer is one such a device which does not draw current from the circuit. Okay? Listen very, very carefully. Voltmeter, which does not change. वोल्टमीटर क्या है, जो चेंज ही नहीं करता, क्या चेंज नहीं करता, ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्टमीटर which does not change the original potential difference. Needs to have infinite resistance. बहुत अच्छे समझना, देखो ऐसा वोल्टमीटर बनाना भी मुश्किल है. सो हीरो लोग बहुत अच्छे समझिएगा. एक तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी. यहाँ पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं. अगर आप वोल्टमीटर ऐसा बनाना चाहते हैं जो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका, ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसे क्या नहीं करे, चेंज नहीं करे. क्या नहीं करे, चेंज नहीं करे. अगर ऐसा आपको बनाना है तो उसका रेजिस्टेंस हमें कितना रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट. एंड दिस इज नॉट पॉसिबल. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हम उसका नहीं कर सकते. सो इसीलिए वोल्टमीटर में हमेशा क्या आती है, एरर आती है. उसी एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर. तो पोटेंशियोमीटर की क्या क्वालिटी है वो भी समझा देता हूं, ताकि कल कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि व्हाट इज वोल्टमीटर, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर. दोनों ही वोल्टेज को मेजर करते हैं, दोनों ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं. यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो एररफुल आएगा, और पोटेंशियोमीटर से जो आप पोटेंशियल निकालेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालेंगे हीरो लोग, वो एरर लेस आएगा. 0% एरर पोटेंशियोमीटर में होती है और वोल्टमीटर में कहीं ना कहीं एरर अवेलेबल रहती है, बिकॉज वी आर अनेबल टू कीप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, एंड दैट्स व्हाई we don't obtain original potential difference. Now what is the special quality in the potentiometer by which we can obtain the original potential difference? So I'm writing here, it is one such device, it is one such device which does not draw it is a one such device which does not draw current from the circuit and still measures potential difference. Still measure potential difference. So it act as ideal voltmeter. Ideal voltmeter. सी क्या समझाना चाहता हूं वो अच्छे समझ लेना. द फर्स्ट पेज कॉन्सेप्ट इज क्लियर. पोटेंशियोमीटर सर एक ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं, किसको मेजर करते हैं, अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करते हैं.
तो कैसे मेजर करते हैं? अगर एक सिंपल वोल्ट मीटर है तो इसमें तो ऑब्वियसली करंट ड्रॉ होगा, और करंट ड्रॉ होगा तो रेजिस्टेंस हमें क्या रखना पड़ेगा? इनफाइनाइट। अगर यहाँ रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं रखा तो करंट अंदर आ जाएगा, और करंट आया, ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल ही नहीं सकता। ओके, व्हेन वी विल गो इन द लैब आई विल शो यू। दूसरी बात यहाँ पे, अब पोटेंशियोमीटर कैसे डिफरेंट है वोल्ट मीटर से, तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में दोनों में कंपेयर करके बताया है। वोल्ट मीटर विच डज नॉट चेंज द ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस नीड्स टू हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अगर आप वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, वो भी ओरिजिनल, सो आपको रेजिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा? इनफाइनाइट। इसलिए इनफाइनाइट रखना पड़ेगा ताकि यहां से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो, और ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए ये एररफुल रीडिंग देता है। पोटेंशियोमीटर की क्या क्वालिटी है? इट इज द वन सच डिवाइस विच डज नॉट ड्रॉ करंट। ये करंट को ड्रॉ नहीं होने देता है, मीन्स इसमें करंट फ्लो ही नहीं होने देता है। ओके, सो फ्रॉम द सर्किट एंड स्टिल मेजर्स, उसके बाद भी ये किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। इसीलिए इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? आइडियल वोल्ट मीटर। सो इन एग्जाम मे बी द क्वेश्चन विल आस्क बाय द एग्जामिनर व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। बहुत अच्छे से पैशंस के साथ आपको आंसर देना है। सर, आइडियल वोल्ट मीटर इज पोटेंशियोमीटर। अंडरस्टूड? मे बी एग्जामिनर विल आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर। बहुत आराम से आंसर देना है। द एररफुल रीडिंग विच इज गिवन बाय द व्हाट? ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाय द वोल्ट मीटर, एंड एररलेस रीडिंग गिवन बाय द पोटेंशियोमीटर। ऐसा क्यों होता है? सर, करंट ड्रॉ होता है वोल्ट मीटर में, लेकिन पोटेंशियोमीटर में करंट ड्रॉ होता नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द सेकंड पेज। So in this next concept we are going to be talk about principle of potentiometer. Let's try to understand the principle of potentiometer. If you have any doubt, you can ask me anything relevant to that. Principle of potentiometer. You have to watch the full video and keep the patience because अब एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पास में है। अक्टूबर आ चुका है, लॉकडाउन करके आप बैठे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ जाएगी, बिकॉज एक साथ आप फिजिक्स का सिलेबस कवर ही नहीं कर पाएंगे। एंड देन लास्टली यू विल टेल मी कि सर व्हाट टू डू टू क्रॉस द एग्जामिनेशन। सो अगेन आई विल टेल यू, गो थ्रू द complete video, write the notes, make the notes from this particular video. Okay, so principle of potentiometer. What actually meaning of the principle of potentiometer? So let's try to understand. Firstly, I am writing here and then I will explain. In this, what actually we are going to be do? Potentiometer unknown potential difference or EMF can be determined by comparing it with non-uniform variable potential difference spread across the wire of the potentiometer. In the state of non-deflection in the galvanometer, unknown EMF or potential difference is equals to non-EMF or potential difference. It is the principle of potentiometer. अब आप बोलोगे सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ कंडीशन क्या कह रहा है, एक सर्किट को लेकर मैं समझाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. दिस इज योर सर्किट. This is your rheostat. This is K1 key. For you, this hard working is going on. So please go through it and just share with your friends, by which they can obtain the benefit of these videos. This is your galvanometer and this with this galvanometer जो कि is here, okay, and this is the length. This is called galvanometer. Okay, and what actually we are going to be do, let's try to understand. This is the circuit in which this is called non EMF. क्या बोलते हैं उसे? non EMF.
इसे बोलते हैं अननोन ईएमएफ। आपको वहां पर दे रखा होगा गैल्वेनोमीटर से एक जोकी कनेक्टेड होगी, जोकी इज लेंथ ऑफ वायर, लेट्स से द नेम हियर ए एंड बी। इस ए बी पे हम मूव करते हैं, तब तक मूव करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर में क्या नहीं आ जाता, जीरो डिफ्लेक्शन। स्टूडेंट बहुत अच्छे समझना, यहां पर एक सेल नॉन सेल है, एक ही अननोन सेल है, रियोस्टेट कनेक्टेड है, K1 की है, ठीक है, और यहां पर लेंथ ऑफ वायर टोटल कितना है, 100 सेंटीमीटर है। अब नीचे क्या दिया हुआ है, अननोन ईएमएफ दे रखा है और गैल्वेनोमीटर दे रखा है। यहां पे हम जोकी को मूव करते हैं, तब तक जोकी को आपको मूव करना है, यू हैव टू बी मूव द जोकी until you will obtain zero deflection in galvanometer, and this zero deflection of galvanometer is also known as null point। इसे null point भी कहते हैं, ठीक है, या बैलेंसिंग लेंथ भी कहते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आएगा तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपका जो नॉन ईएमएफ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अननोन ईएमएफ के इक्वल आ जाएगा। मीन्स यू विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ व्हेन यू विल ऑब्टेन द जीरो deflection in galvanometer or balancing condition of galvanometer or null point in galvanometer। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रिंसिपल लिख रहा हूं। सो द नेम ऑफ फिगर इज principle of, see we are determining this principle by using the device galvanometer। so principle of पोटेंशियोमीटर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई वो समझ में आ गया होगा। आप जोकी को मूव करेंगे, तब तक जोकी को मूव करेंगे जब तक जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं आ जाते, और जीरो डिफ्लेक्शन जैसे ही गैल्वेनोमीटर में आए आपका नॉन सेल की जो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, अननोन सेल की इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब आपने अननोन ईएमएफ की वैल्यू निकाल ली। तो ये कंपैरिजन करना, और गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन आते ही नॉन ईएमएफ की वैल्यू अननोन की इक्वल होना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं बाय विच यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। इन द स्टेट listen very carefully, in the state of non-deflection in galvanometer, unknown EMF, see unknown EMF or potential difference in the state of non-deflection in galvanometer, unknown EMF or potential difference is equal to, please remember, is equal to the non-EMF or potential difference is called principle of potentiometer। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो अगेन हीरो लोग मैं वापस समझा रहा हूं, आप तब तक जोकी को मूव करेंगे जब तक ये नॉन ईएमएफ की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो जाती, अननोन ईएमएफ के इक्वल नहीं हो जाती। कब होगी, जब आप क्या लेके आएंगे, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको क्या लेके आनी होगी, या तो बोलिए आप जीरो डिफ्लेक्शन, आइदर यू कैन से दैट नल पॉइंट, एंड थर्ड यू कैन से दैट बैलेंसिंग लेंथ भी बोल सकते हो, या बैलेंसिंग कंडीशन भी बोल सकते हो। So that should be very easy, it's not and difficult. So let's try to understand what actually the meaning of the principle of potentiometer again and the last time.
in the state of non-deflection in the galvanometer, unknown EMF or potential difference is equal to the non-EMF or potential difference is called principle of potentiometer. So क्या करना है आपको, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, नॉन डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, दिस नॉन डिफ्लेक्शन मीन्स आप गैल्वेनोमीटर में क्या लेके आ गए हैं, जीरो डिफ्लेक्शन, नल पॉइंट, बैलेंसिंग लेंथ या बैलेंसिंग कंडीशन बोल सकते हैं. सो दैट शुड बी द वेरी इजी कंडीशन. आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस. सो हीरो लोग हम चल रहे हैं आगे और हम बात करने वाले हैं अब पोटेंशियल ग्रेडियंट. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके ऊपर. पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी के ऊपर कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बिकॉज दैट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट सबसे पहले क्या होता है, पहले तो ये समझा देता हूं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स. एक्स से तो हम इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसकी डेफिनेशन बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. The potential drop per unit length is called potential gradient. अब किसी बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है द लॉस ऑफ वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, तो वो भी पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है. ओके, so don't be confused. And mathematically x is equals to v by L. If anyone will be asked you what is the unit of potential gradient, so always remember volt per meter is the unit of potential ग्रेडियंट. तो आपको प्रिंसिपल भी समझ में आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आपको समझ में आ गया है. तो अब इसी को बेस लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूं. सो ऑन द थर्ड पेज वी आर गोइंग टू बी टॉक हियर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द थर्ड पेज सिचुएशन इन विच वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन. सो यहां देख लेते हैं. From the बहुत अच्छे समझना, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो. x इज इक्वल्स टू अभी हमने पढ़ा v बाय एल, तो v इज इक्वल्स टू यहां क्या हो जाएगा, x है. इजी, ये आया समझ में. तो यहां क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, XL आ गया. ठीक है, और ये जो v इज इक्वल्स टू XL आया वो किसकी वैल्यू थी, प्राइमरी सेल की. जो पहले सर्किट मैंने भी ड्रॉ किया तो उसमें बताया था एक सेल नॉन सेल है और एक अननोन सेल है. तो अननोन जो EMF है उसका कंपैरिजन हमने कहाँ किया, नॉन EMF से किया. तब तक किया जब तक गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आ जाता. तो जीरो डिफ्लेक्शन आया और हमारे पास अननोन जो EMF था उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, नॉन EMF के इक्वल हो गई. और वैल्यू कितनी आई, XL. सो एज यू नो दैट बाय यूजिंग ओम्स लॉ, सो साइंटिस्ट ओम हैज गिवन द लॉ V इज इक्वल्स टू IR. ये तो आपको पता ही होगा. सो यहां पर क्या हो जाएगा, सिचुएशन को समझेंगे आप. x इज इक्वल्स टू, मैं यहां लिख देता हूं v बाय एल. तो v इज इक्वल्स टू आपको फॉर्मूला पता है IR, L की जगह L. और मैं यहां मान लेता हूं दिस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. बहुत अच्छे समझिएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आ गई, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, x इज इक्वल्स टू
IRM लिखा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल है, आया समझ में। सपोज इन दैट सर्किट, जो मैंने सर्किट बनाया था उसकी बात कर रहा हूं। इन दैट सर्किट विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, with external resistance or another resistance R dash and internal resistance small r is connected। अगर मान लीजिए उस सर्किट के अंदर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हीरो लोग मैं क्या बात करने वाला हूं बहुत अच्छे से समझ लेना। अभी तक हमें x इजिकल टू IRM मिल गया। मान लो उस सर्किट के अंदर जहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R तो था ही, पहले एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं कि रेजिस्टेंस एक R डैश है और इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको स्मॉल r से लिखते हैं, जो चैप्टर 5 मैंने बताया था। नहीं पता हो तो आप चैप्टर 5 की वीडियोस देख सकते हैं। इज कनेक्टेड इन सीरीज, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है, सो एज यू नो दैट I की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, EP अपॉन R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में, और सीरीज में जितने भी कनेक्शन होते हैं उसमें रेजिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। अब इसको, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें इक्वेशन सेकंड की वैल्यू पुट करते हैं। सो व्हाट वी गॉट इट, EP अपॉन R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r मिल गया हमें, ये कोई दिक्कत यहां तक। और जो RM था, RM की जगह उसकी वैल्यू एग्जैक्ट लिख देंगे R बाय L। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज x इज इक्वल टू EP बाय R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r मल्टीप्लाई विथ R बाय स्मॉल l। एक बार इसे देख लो। सो अच्छे से देख लिया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू द रिलेशन। सपोज देयर इज R डैश इज इक्वल टू 0, स्मॉल r इज इक्वल टू 0। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, तो आप अच्छे से जानते हो ये हो जाएगा EP डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अगर स्मॉल r इज इक्वल टू 0 है, R इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है जो आपको बहुत अच्छे समझनी है, क्या सिचुएशन आएगी, और इसी को आपको थोड़ा सा माइंड में सेट करना है। सो EP ओपन क्या आ जाएगा, R। अब EP ओपन ये R आ गया, और मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा, R ओपन है। सो ये R से R क्या हो गया, कैंसल हो गया, कैंसल। तो आपको क्या मिल गया, EP अपॉन L मिल गया। अब EP अपॉन L मिल गया, तो मैं EP को क्या लिख सकता हूं, IR क्यों लिख सकता हूं, EP इज इक्वल टू V, और V इज इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या बना था हमने, IR। तो यहां अपने पास आ जाएगा IR बाय L। एज यू नो दैट 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन E। ये तो पढ़ा ही होगा यार, बिल्कुल मैं मान लेता हूं तुमने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो आपको वापस 5th क्लास चैप्टर 5 में ये मैंने पढ़ाया है, उसको वापस देख लीजिएगा एक बार। तो x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा I इंटू रो L अपॉन ए, और इसका जो ये L था L, दिस R इज रिप्लेस बाय दिस। सो L से L क्या हो गया, कैंसल। तो ये आ गया रो L अपॉन ए। अब सिचुएशन जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ समझ लेना, एक बॉक्स बना के समझा रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, वो आप नोट्स में अच्छे से लिख देना। पहला रिलेशन इससे क्या है अपने पास, x इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ओके, वेरी गुड। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो
x is directly proportional to L and x is inversely proportional to area। कहने का मतलब यहाँ पर हीरो लोग समझना, अगर आप डेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या होगा, इंक्रीज। डेंसिटी को डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या होगा, डिक्रीज। तो वो रिलेशन यहाँ निकाल ली अपने x और L के बीच में। L को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज होगा, लेंथ को डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर एरिया को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा, एरिया को डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ फॉर्मूलेज और कुछ टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। से ये जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और एक जो ये फॉर्मूला हमने निकाला, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कीप इन द ब्रेन। उम्मीद करता हूँ आपको पेज 3 भी समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू द पेज नंबर 4। So this is the last page and there are some topics that is very important. Let's try to be talk. So now we are talking about the next topic. ठीक है हीरो लोग, थोड़ा सा पैशंस रखना और अच्छे से समझना। That is important topic. Standardization of potentiometer. Standardization of potentiometer. What actually meaning of the standardization of potentiometer, वो आपको समझा देता हूँ एक बार। देखो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्रैक्टिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किसकी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की, उसी हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, याद रहेगा, नहीं रहेगा मुझे पता है, इसलिए मैं लिख ही देता हूं यहां पर। It is a process of finding, क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंडिंग प्रैक्टिकल वैल्यू of potential gradient, and you know that potential gradient is x, is called standardization of potentiometer. So what is the standardization of potentiometer? सर एक प्रोसेस होता है, it is a process, sir, in this we are finding the practical value of potential gradient. So you are finding the practical value of potential gradient, okay, that is called standardization of potentiometer. Now you have a question in your brain कि सर फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे ये निकलेगा सर। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, सेम प्रोसेस, जो प्रिंसिपल बताया था आपको किसका, पोटेंशियोमीटर का। आपको जोकी को मूव करना है, तब तक जोकी को मूव करना है, मैं बता भी देता हूं आपको। See here, that is the same diagram which is very important here. You have to move the jockey until there is a zero deflection in the galvanometer. Okay, you want to find out potential gradient x, कैसे फाइंड आउट करोगे, स्टैंडर्ड, दिस इज व्हाट, स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ को किससे कंपेयर करोगे, अननोन ईएमएफ से। कब कंपेयर करो, कब तक कंपेयर करोगे, जब तक आप जोकी घुमाओ और गैल्वेनोमीटर में क्या नहीं आ जाए, जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आ जाए, नल पॉइंट नहीं आ जाए, या बोले तो बैलेंसिंग लेंथ या बैलेंसिंग कंडीशन नहीं आ जाए, तब तक आपको क्या करना है, मूव कराते रहना है। और जैसी आपको ये मिल जाएगी तो आपका जो स्टैंडर्ड सेल है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, नॉन सेल के बराबर हो जाएगी। और जैसी नॉन सेल का आपको ईएमएफ मिल जाएगा, यू कैन इजीली फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाउ कैन यू फाइंड आउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट्स वेरी सिंपल। स्टैंडर्ड सेल जो है
वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स एल नॉट। ठीक है, तो ये लेंथ आ गई, जिसे बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल. So when you will obtain zero deflection in galvanometer, means you got it the value of standard cell which is equals to unknown cell, or you can say that value of the standard EMF which is equals to non EMF. So I hope so you understood. And then you will find out the potential gradient. So ES divided by L naught. This L naught is obtained when you are moving the jockey, and you will obtain zero deflection in galvanometer. तो उम्मीद करता हूँ you can understand the concept whatever I taught. समझ में आ गया होगा. काफी सिंपल है. आपको तब तक जोकी को मूव करते रहना है जब तक कि स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो जाए, अननोन सेल के, या स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो जाए, अननोन ईएमएफ के इक्वल. जैसे हो जाएगा, इक्वल होगी, तो ES इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स एल नॉट. जहां पर आपने जोकी रखी है और जहां पर जीरो डिफ्लेक्शन आया है गैल्वेनोमीटर में, ओके, सो वो लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे इतनी नहीं है आपको, और x इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल में आप किसको डिवाइड कर दोगे, वट एवर द वैल्यू ऑफ बैलेंसिंग लेंथ यू गॉट. I hope so you understood till that. So now we are come to the last point. So the last point is sensitivity of potentiometer. So let's try to understand what actually meaning of the sensitivity of potentiometer. Okay. First, if any potentiometer measuring very small potential difference. फर्स्ट पॉइंट यहां पे समझना ही लोग, अगर ऐसा पोटेंशियोमीटर है, वो सबसे ज्यादा सेंसिबल कब होगा, जो बहुत ज्यादा स्मॉल से स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दे, निकाल दे विदाउट एरर. ठीक है, एक्यूरेट रीडिंग निकाल दे किसकी, स्मॉल से स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस की निकाल दे. तो ऐसे पोटेंशियोमीटर को हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर, या बोल सकते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर. अगर लोकल लैंग्वेज समझे, कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव, आप कुछ बोलते ही वो तुरंत रोने लग जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी. ठीक है, तो यहां पर भी ये ऐसा पोटेंशियोमीटर है, स्मॉल टू स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उसकी सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर. ठीक है, ये आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहां तक. ओके, ये तो हो गया बिल्कुल डिफरेंस, इजी टू इजी यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, if there is small change in deflection of galvanometer, okay, there is a small change in the galvanometer, that can be represent by पोटेंशियोमीटर. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. पहला तो ऐसा पोटेंशियोमीटर जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दे, उसको क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी बोलेंगे उस पोटेंशियोमीटर की. अब दूसरी यहां कंडीशन समझना, स्मॉल चेंज मीन्स आपकी बैलेंसिंग लेंथ आ गई है, और उसके बाद जरा सा भी चेंज आया, किसमें चेंज आया, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर में, उसको भी क्या कर ले, ये
रिप्रेजेंट कर ले, सेंस कर ले, ठीक है, कौन सेंस कर ले, पोटेंशियोमीटर। तो ऐसे पोटेंशियोमीटर को हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। उम्मीद करता हूं यू कैन अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहला, स्मॉल टू स्मॉल क्या निकाल दी, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दी, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। दूसरा, इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पोटेंशियोमीटर। अगर बैलेंसिंग लेंथ आ गई है उसके बाद भी जरा सा भी चेंज इधर उधर होता है निडल का, ओके, और वो तुरंत कौन सेंस कर लेता है, पोटेंशियोमीटर। ऐसे पोटेंशियोमीटर को हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ potentiometer can be increased by following factors. If you want to increase the sensitivity of potentiometer, you can increase the following factors or decrease the following factors. So let's see कौन से फैक्टर हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, if you want to increase the sensitivity of potentiometer, so you have to be what, increase the length of potentiometer. So number 1, increase the length of potentiometer. सबसे पहला फैक्टर तो ये हो गया, you can increase the length of potentiometer, so sensitivity of potentiometer is going to be increased. So उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। Now second thing that is very important, decrease the amount of current in the circuit. Decrease the amount of current in the circuit with the help of rheostat. अगर आप rheostat की हेल्प से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे, क्या इंक्रीज कर देंगे, रेजिस्टेंस, सो ऑब्वियसली करंट क्या हो जाएगा, काउंटर होगा सर्किट के अंदर। सो इससे क्या होगा, करंट अगर काउंटर होगा, so potential difference across with this wire is decreases without changing the primary circuit. Okay, so potential gradient, the total length of wire is increases. So from this, total length of wire is increases. अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बला हुई सर, हमें समझ में नहीं आया। यार आपको इतना तो पता होगा, R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में मैंने बताया था, इफ यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ देन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज। तो आपको ये सबसे अच्छे समझ लेना है, अगर आप लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो यहाँ कर क्या रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, करंट को हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इन द सर्किट। किसकी हेल्प से, रियोस्टेट की हेल्प से। रियोस्टेट क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो आपने क्या किया, रियोस्टेट इंक्रीज किया, इसका मतलब यू इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इफ लेंथ इज इंक्रीजेस, यू नो दैट इफ वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ, सो sensitivity of potentiometer is going to be increased. So this can measure the very small potential difference. Also, if there is a change in the balancing length, deflection of the potentiometer, it is also sensed by the potentiometer. That is called sensitivity of potentiometer, and factor is length, and current you will decrease by increasing the rheostat. उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। So next lecture में फिर एक फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच एसके सर के साथ बने रखने के लिए। जय जवान जय किसान, बाय बाय।